Assalamu alaikum. I'm Sadia Malik from OCLP, Office of Corporate Linkages and Placements at University of Management and Technology. Hope I'm audible. Yes, ma'am, audible. Under the vision of President UMT, Mr. Ibrahim Hassan Murad has launched high-impact, iconic learning and development-focused Virtual Career Week 2021 on the theme of chasing the dream career 2030 to prepare the students and facilitate them to emerge as a marketable graduates for the future world of work. There are myriad of career-related activities planned in this career week, including insightful workshops, induction sessions, recruitment drives, grooming and orientation sessions for the future leaders. Furthermore, this career week has provided a platform to the corporate sector to introduce their companies to a diverse crowd of students and to get a pipeline of talent as your future workforce, as we have 25,000 plus students and 20,000 plus alumni, and they are not only their potential employees for the future but their current consumers and future influencers as well. Talking specifically about today's theme, so today's theme is Hyperloop awareness session on safe and informed migration, whereby we have planned this session for the student of all disciplines. The purpose of this session is to raise awareness and provide clear information to the potential migrants. Prior initiating the session, I would like to give a brief introduction about the speakers. As we have two speakers today, Mr. Umar Shahzad has done Masters of Business Administration with over 8 years of diverse experience in development projects, along with an experience in policy making and community outreach. He is currently working with International Center for Migration Policy Development as MRC counselor. He is experienced in counseling the rights and establishing a relationship of trust and respect with community, sensitized a huge number of beneficiaries across Punjab on the issues of education, health, and safe migration. He has successfully completed various consultancy tasks on a wide range of thematic areas, which includes community engagement, sensitization, social accountability, and social exclusion. Having a leadership skill outstanding and very helpful and highly valued. Mr. Umar contributed successfully in organizational goals and targets, and performance was proven to be among the most effective in every organization and project where he worked. Now I will introduce Mr. Rana Imran Arshad. He is working with International Center for Migration Policy Development as MRC counselor and is the MRC focal point for developing and conducting community outreach programs. He has more than 10 years professional experience in development sector. He has managed mega rollout projects for the BISP, USAID, Save the Children, International Labour Organization, and Women Development Department. Government of Punjab. Furthermore, he also has experience in designing manuals, conducting trainings, project management, coordination, institutional development, capacity building, awareness raising, community development, and arranging exposure visits for various civil society organizations in all four provinces of Pakistan. Migrant Resource Center (MRC) operate to provide a potential and outgoing migrants with information and counseling in various areas such as overseas employment, rights and protection of migrants, access to education system in other countries, skills development and vocational training programs in Pakistan. More importantly, providing awareness on the benefits of safe and regular migration and the dangers and consequences of irregular migration. MRC work under the auspices of the Ministry of Overseas Pakistanis and Human Resource Development and the Labour and HRA Department Government of the Punjab. The main objective of the MRC is that they provide clear, accessible, and understandable information to potential migrants on possibilities for orderly migration as well as rules and regulations, including relevant pre-departure information. So thank you so much for joining Mr. Umar Shahzad and Mr. Rana. This is all from my side. Now the session is yours. Thank you very much, Sadia. Hello, everyone. Thank you for tuning in for today's session. I'm grateful to UMT and Office of the Corporate Linkages and Placement for providing us the opportunity to raise awareness regarding safe and informed migration. First of all, let me share the screen with all of you. Okay, I hope that everybody is able to see the screen.
Okay, further going, I would like हम माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर को थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं, जिसमें लीगली माइग्रेट करने के एडवांटेजेस एंड इलीगल या इरेगुलर माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को विल डिस्कस। इस सेशन में ना सिर्फ हम सेफ एंड इन्फॉर्म माइग्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बट इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, दोज हु हैव पास्ड आउट, those who are searching for further external opportunities, how they can search job opportunities, process क्या involve हो सकता है, how they can be safe from different fraudulent elements. And as we all know कि present दौर में everything is available over internet, and being educated we need just guidance instead के कोई और चीज हमारी चीजों को लेके साथ चले। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो more than 80% of the population wants to migrate to a developed country just because opportunities are there, the stable conditions over the developed countries, और इन तमाम सिनेरियोस को सामने रखते हुए एमआरसी की बुनियाद रखी गई ताकि पोटेंशियल और इंटेंडिंग माइग्रेंट्स को मुकम्मल मालूमात मिल सके, जिससे वो एक लीगल माइग्रेशन अगर वो चाहते हैं तो वो कर सकें। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हम लोग इस सेशन को दो हिस्सों के अंदर लेके चलेंगे। पहले पार्ट के अंदर एमआरसी की सर्विसेज, एमआरसी का इंट्रोडक्शन होगा, एंड इन द नेक्स्ट हाफ जो कि मेरे कॉलीग अपना इंट्रोडक्शन के साथ आपको बताएंगे, वो स्टूडेंट अफेयर्स को मद्देनजर रखते हुए क्या स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या एलुमनाइज के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, फर्दर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी अब्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो स्लाइड्स मैंने आप सबकी स्क्रीन्स के ऊपर शेयर कर दी हैं, हम आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले एमआरसी, जिस तरीके से मिस सादिया ने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर इस टाइम पे अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इस्लामाबाद में एंड पंजाब में अंडर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लाहौर में काम कर रहा है। देयर आर 2 सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान जो कि 2015 के अंदर इस्टेब्लिश कर दिए गए थे। बेसिकली ये फंडेड है यूरोपीय यूनियन की तरफ से और अंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICMPD, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट। मजीद हम आगे लेके चलते हैं तो अब बात करते हैं कि एमआरसी की बुनियाद क्यों रखी गई, क्या ऐसी चीज़ों को देखा गया जिसकी वजह से एमआरसी की बुनियाद सामने रखी गई, जिन वजूहात के तहत एमआरसी को देखा गया कि इनकी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तानी कम्युनिटी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के हवाले से। तो एमआरसी बेसिकली स्ट्राइव टू प्रोवाइड clear, accessible and understandable information and counseling to outgoing, intending and potential migrants on possibilities of safe, legal and orderly migration. We strive to provide जो लोग potential और intended migrants हैं to work abroad, जिस तरीके से हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान की जो major अभी भी हम खबरों में भी सुनते आ रहे हैं कि जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ रेमिटेंस वी आर जनरेटिंग, या ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस जनरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर भेज रहे हैं तो उसको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर किस तरीके से ला के हम लोग इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो लेबर यहाँ से बाहर जा रही है उनके राइट्स को वायलेट ना हो, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए, जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहे हैं, जो फैमिलीज अब्रॉड जा रही हैं, या जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड क्लास है जो बाहर जाके काम करने की गर्ज से जा रही है, तो उनको पूरे रूल्स रेगुलेशंस, उनके साथ पूरा एक काउंसलिंग का सेशन किया जाए। अक्सर औकात जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं बहुत जल्दी उनको बहुत सारे मुश्किलात जब बाहर के मुल्क जाके फेस करना पड़ते हैं, तो किन किन लोगों को वो अप्रोच कर सकते हैं, ये मैंडेट है एमआरसी का। जब मैंने बात की ओवरसीज की, तो उसके अंदर से एक जो मेजर चंक है वो लेबर क्लास हमारा जाता है, पाकिस्तानी लेबर का। ऑल्दो हम लोग इस टाइम के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट हम सब की एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपनी इकोनॉमी, अपनी कम्युनिटी को भी साथ में लेके चलें। आप कम्युनिटी के हवाले से बात करते हैं तो एक लेबर का तबका बहुत ज़्यादा GCC कंट्रीज़ के अंदर काम करने के लिए जा रहा होता है, तो वी आर देयर टू हेल्प देम आउट फॉर देयर राइट्स,
जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं या जो उनकी लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए, और डिफरेंट इस तरह की इंफॉर्मेशन हैं जो कि हम लोग उनको प्रोटेक्टरेट ऑफिस के अंदर जाके देते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो मैंडेट है जिसके अंदर आज ये वाला सेशन भी दिया गया हम लोगों को, जस्ट टू क्रिएट मैक्सिमम अवेयरनेस, ताकि जो पोटेंशियल माइग्रेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट इस चीज का मिल सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिनके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं भी है, उन तक भी ये इंफॉर्मेशन कम से कम पहुंच जाए, ताकि अगर वो कल को किसी भी एरिया के अंदर बैठ के इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन के ऊपर चीज़ें आ रही होती हैं, तो दे नो कि देयर इज एन इंस्टीट्यूट दैट इज प्रोवाइडिंग दीज अपॉर्चुनिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर अगर हम लोग चले जाते हैं, मैंने ऑलरेडी एक सर्वे के अकॉर्डिंगली बताया, मोर देन 80% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वांटेड टू माइग्रेट टू सम डेवलप्ड कंट्रीज। कुछ स्टैट्स भी आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहे होंगे दैट 3% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज माइग्रेंट वर्कर, और जो 90% अगर हम बात करें जीसीसी कंट्रीज के अंदर लेबर की, क्योंकि लेबर के राइट सबसे ज्यादा वायलेट किए जाते हैं, तो ज्यादा फोकस हमारा लेबर की तरफ भी होता है जो जीसीसी कंट्रीज के अंदर जाके काम कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं तो 96th लार्जेस्ट लेबर फोर्स प्रोवाइडर है अक्रॉस द ग्लोब, मैं कह सकता हूँ, और थर्ड है जी लार्जेस्ट या हाईएस्ट नंबर के अंदर आफ्टर कंबोडिया एंड बांग्लादेश। हम इसीलिए हैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर, इसलिए अंडर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो हम अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, जस्ट टू मेक देम इन्फॉर्म्ड, to make their decisions informed when they are considering to migrate, and these all services are free of cost. And the main या जिसको आप कहते हैं the most considering aspect of MRC is to protect migrants' right. जनरली जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं उनको अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता होता। ऑब्वियसली जब आप किसी और मुल्क के अंदर चले जाते हैं तो आपको एक तो पहले ऑलरेडी एक डिफरेंट सिनेरियो, एक एनवायरनमेंट बिल्कुल हमेशा डिफरेंट मिल रहा होता है, फिर आपको पता नहीं होता कि इन केस अगर आपको कोई इशू आ जाता है तो आपने किन लोगों को अप्रोच करना है। तो जो उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट ना हो, उनको उनके राइट्स का पता हो, हम लोगों के पास मैंडेट है कि हम लोग उनको प्रॉपरली अवेयर करते हैं, उनके लिए प्रॉपर 1-to-1 सेशंस भी करते हैं जिसको हम प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशंस कहते हैं, ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग इंटेंडिंग और पोटेंशियल माइग्रेंट्स हैं उनको किसी किस्म का इशू फेस ना करना पड़े। ये ओवरऑल सर्विसेज हैं। जिस तरीके से अभी आप रिसेंटली सुन भी रहे हैं कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं बाहर, उनको बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि उनके लैंड्स यहाँ पे हैं या उनको फर्दर कोई और इश्यूज यहाँ पे फेस होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो एक रेफरल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि जो लोग इंटरनेशनली बाहर बैठे हुए हैं उनको जो इश्यूज आते हैं, कोई किसी किस्म का भी इशू, तो उनको रेफरल प्रोवाइड करते हैं। काउंसलिंग, जो इंटेंडिंग माइग्रेंट्स होते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि हमारे आम रूटीन के अंदर ये चीज़ स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर या जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए भी बाहर जा रहे होते हैं, वो समटाइम्स इन चीज़ों को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जब बाहर जाते हैं तो उनको बहुत सारे मसाइल, लेट्स सपोज कि ज़ाइनोफोबिया फेस करना पड़ता है या इस तरह के डिफरेंट इश्यूज। तो उनको जाने से पहले ही काउंसलिंग दी जा रही होती है कि जब आप बाहर जा रहे हैं जिस मकसद के लिए भी, चाहे वो काम करने की घर से, चाहे आप पढ़ने की घर से, तो आपको इन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। और अगर आप ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, देन यू शुड फर्दर गो विद द मॉनेटरी प्रोसेस। फर्दर प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, और जो लोग जा रहे होते हैं डिफरेंट कंट्री होता है, डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस, उनके एथनिक बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज हर एक कंट्री की डिफरेंट होती हैं, तो कोशिश करके उनके साथ प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशन लेते हैं जिसके अंदर कुछ लैंग्वेज स्किल्स उनको देते हैं हम लोग, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बारे में उनको बताते हैं और उनके राइट्स के बारे में बताते हैं। एंड आउटरीच सेशंस हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंडेट है, ताकि हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों के सामने आउटरीच कर सके, लोगों के सामने एडवर्टाइज कर सकें, ताकि
कल को जो इश्यूज उनको फेस करना पड़े वो ना हो, और वो हमारे पहले ही सारी ओरिएंटेशन लेके जाएं ताकि इन सब चीज़ों को कम से कम लेवल के ऊपर लेके चल सकें। फर्दर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो इट्स लाइक 8.8 मिलियन पाकिस्तानीज लिव अब्रॉड, जिसके अंदर से जो मेन स्टार्ट्स हैं दैट इज 4.7 मिलियन जो हैं वो तो इस टाइम पे मिडिल ईस्ट के अंदर रह रहे हैं। उसके अंदर लेबर कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, फिर बाद में आपके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड अदर जो भी हर एक शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला वहाँ पे डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इंगेज है। एंड जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी पाकिस्तानी है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर बेस करती है, वहाँ पे वो रहती है। तो ये दो मेजर चंक्स हैं, और इसके अलावा जो 8.8 में से रिमेनिंग पॉपुलेशन है जिसमें से हम 4.7 और 1.2 माइनस कर देते हैं तो वो ग्लोबली रह रही है एज ए माइग्रेंट। हम फर्दर थोड़ी सी टाइप्स को भी बयान करते जाते हैं। माइग्रेशन, आई नो एवरीबडी इज लाइक एजुकेटेड in this session, they do have some idea regarding migration. तो माइग्रेशन को और ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइग्रेशन कि जब भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं दैट इज़ नोन एज माइग्रेशन। इंटरनल के अंदर जब हम विद इन अ कंट्री विद इन सम स्पेसिफिक प्रेमिसेस होते हैं तो वो इंटरनल माइग्रेशन, और एक्सटर्नल माइग्रेशन ऑब्वियसली जब आप बॉर्डर्स को क्रॉस करके आगे जाते हैं उसको हम एक्सटर्नल माइग्रेशन कहते हैं। अब माइग्रेशन से एक और चीज ऐड करता चलूं, माइग्रेशन हम लोगों को ऐसे जरूर लगता है, अभी अगर आप लोग न्यूज के अंदर सुने, एक रीसेंट न्यूज का आपके साथ जिक्र करता चलता हूं। रीसेंट न्यूज के अंदर अभी हंगरी का बॉर्डर क्रॉस करते हुए बहुत सारे अफगान एंड पाकिस्तानीज were trapped and were taken into custody by the Hungary army. तो दे वर लाइक डूइंग इलीगल माइग्रेशन। तो हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इलीगल माइग्रेशन अभी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो हमारी कोशिश हर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर या ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोग लेके चलते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी उनको वो वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। लेट्स सपोज अगर हम लोग स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ उनके साथ डिस्कस की जाए। स्टूडेंट्स के अपॉर्चुनिटीज़ के बाद इन केस अगर वो लोग लास्ट सेमेस्टर्स के अंदर हैं एंड दे विल बी लाइक सर्चिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो जो बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनके बारे में उनके साथ डिस्कस किया जाए। जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं यूनिवर्सिटी को एक्सेस करने के लिए या कोई किसी एम्प्लॉयर को एक्सेस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप लोग वीज़ा लगवाने लगे हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से जो ऑडियंस हमारे सामने मौजूद है उनके साथ डिस्कस किया जाए। बट इन कंटिन्यूटी विद द डिस्कशन रेलिवेंट टू देयर, आप उनको कह दीजिए जो उनके साथ रेलिवेंट है, प्लस हम लोग कुछ और चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करते चलते हैं ताकि उनको पता हो, और अगर वो किसी जगह के ऊपर बैठे तो दे नो कि ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग फ्लोट इन कर सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए ये बात चल रही थी कि इलीगल माइग्रेशन भी हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा होती है। और मैं मजीद एक बात करता चलता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग ये नहीं समझते कि जब भी हम लोग बाहर जाके कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी से पहले एज ए पाकिस्तानी अपने आप को शो कर रहे होते हैं। अगर कुछ अच्छा करेंगे तब भी पाकिस्तान का नाम अच्छा होगा, अगर कुछ बुरा करेंगे तो पाकिस्तान का नाम बुरा होगा। तो ऑलवेज कंसिडर दिस कि जब भी हम कुछ करें किसी भी आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान तो हम लोग एज ए पाकिस्तानी कंसिडर किए जाएंगे। तो इस चीज़ को हमेशा मद्देनजर रखें। सेशन की तरफ हम लोग आते हैं। फैक्टर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मेनली दो फैक्टर्स जो कि आइडेंटिफाइड हैं, पुश एंड पुल फैक्टर। हमारी अगर प्रेजेंट कंडीशन के अंदर देखा जाए, वी आर लाइक मोर देन 22 करोड़ इन ओवरऑल पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो कम हुए जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, ओवरऑल जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो हम सब के सामने है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जनरली जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके अंदर एक चीज़ पैदा होती है कि यार
व्हाई नॉट टू माइग्रेट टू सम डेवलप्ड कंट्रीज। इसी वजह से मैंने वो 80% की पॉपुलेशन आप लोगों के सामने रखी थी कि मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं वो यही सोचते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर एक सोर्स के ऊपर, एक वैकेंसी के ऊपर अगर हम लोग अप्लाई करें तो उसके ऊपर हज़ार लोग और भी अप्लाई करेंगे, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगी, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे सामने है बिल्कुल ऑब्वियसली। तो इस वजह से हर कोई कोशिश करता है कि मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए टू माइग्रेट टू डेवलप्ड कंट्रीज। और अगर पुल फैक्टर्स की बात करें तो पुल फैक्टर्स के अंदर एक बहुत अच्छा मेरे पास एक एग्जांपल है कि जनरली अगर हमारे किसी एरिया के अंदर, किसी कॉलोनी के अंदर या एक गली के अंदर अगर हम देखते हैं कि कुछ लोगों के हालात, कुछ एक दो घर के हालात बुरे थे और उनमें से एक शख्स भी बाहर चला गया है कमाने की गर्ज से, चाहे वो पढ़ने की गर्ज से गया होता है और फिर बाद में वहाँ पे वो कमाने भी लग जाता है, तो उनके हालात बेहतर हो जाते हैं, तो वो एक फैंटेसी क्रिएट हो जाती है, कोशिश हर कोई करता है कि चलो लेट्स मूव अब्रॉड एंड देयर इज नो हार्म इन इट। ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी जब स्ट्रांग है, वैल्यू ऑफ मनी वहाँ की स्ट्रांग है और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, तो इस वजह से लोग बाहर की तरफ भी शिफ्ट करते हैं। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है बाहर की कंडीशंस के अंदर। एजुकेशन की बात करें अच्छी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान से अवेलेबल। तो इन सब सिनेरियोज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, पुल करती हैं, जिससे हमारी ओवरऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो अट्रैक्ट होते हुए बाहर के लिए ज़्यादा इनकरेज होती है टू मूव। सेफ माइग्रेशन जो कि आज का हमारा टॉपिक है, हम सब इस टाइम के ऊपर जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आई नो कि ये लोग पढ़े लिखी कम्युनिटी है एंड दे बेटर नो कि सेफ माइग्रेशन के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जस्ट टू गो थ्रू, मैं इसको कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी, और जो मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर स्टूडेंट्स फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज जो कि राना इमरान डिस्कस करेंगे, हम लोग उसकी तरफ जल्द से जल्द आए। सेफ माइग्रेशन के बारे में बताता चलता हूँ। सेफ माइग्रेशन के अंदर 2 से 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियस है कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। पासपोर्ट के बाद जिस कंट्री के अंदर हम सर्व करने जा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन लेने की मद में हो, चाहे वो जॉब करने की मद में हो, तो हमारे पास उस कंट्री का वीज़ा होना ज़रूरी है और एक प्रॉपर मोड टू ट्रैवल होना ज़रूरी है, जिसके अंदर बाय एयर जनरली ट्रैवल किया जाता है, तो एयर टिकट्स हमारे पास होना ज़रूरी है। ये स्लाइड को इसलिए इसके अंदर डाला हुआ है कि जब हम लोग दूसरी कम्युनिटीज के साथ बात कर रहे होते हैं जो कि बहुत एजुकेटेड नहीं होती, जस्ट दे आर सेमी स्किल्ड लेबर आप कह सकते हैं, सेमी स्किल्ड लोग जो कि अंडर मैट्रिक होते हैं, उनको तक ये तक नहीं पता होता कि जब आपने बाहर कहीं किसी जगह पे माइग्रेट करना है तो सेफ वेज क्या है। दे डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग पासपोर्ट। अगर उन्होंने पासपोर्ट बना ही लिया या कहीं से उनको पता लग गया कि पासपोर्ट की जरूरत है, तो पासपोर्ट के बाद फिर उनको यही नहीं पता कि वीजा कैसे लगता है, यही नहीं पता, या हमारे जनरली लोगों को ही नहीं पता कि वीजा हमेशा जिस मुल्क में आप रह रहे होते हैं और जिस मुल्क में आप शिफ्ट कर रहे होते हैं, उस मुल्क की एम्बेसी आपके मुल्क में मौजूद है और वीजा हमेशा वहां से लग के आता है। बट there are so many agencies exist करती हैं, fraudulent element is always there, स्टूडेंट्स को या जॉब रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वो हमारी कम्युनिटी को बहुत आसान तरीके से फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व कर लेती हैं। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने सेशंस के अंदर कॉन्टीन्यूटी में देते जाएं सबको, चाहे वो रेलिवेंट हो या ना हो, लेकिन हमारे माइंड की जो एक खूबसूरती है कि जो इन्फॉर्मेशन भी अगर आप लोग एक दफा सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो व्हेनेवर सम सिचुएशन इज क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो आपके माइंड के ड्रॉर में से निकल के फौरन आपके सामने आ जाती है। आपको पता लग जाता है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने तब ली थी और इसको इस पैटर्न के अंदर होना चाहिए। वीजा टाइप्स भी लिखा हुआ है। जनरली आप के साथ मैं बहुत ज्यादा उसके इन डेप्थ के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन लोगों को वीजा टाइप्स का नहीं पता होता। इसकी एक जनरल एग्जांपल मैं यहाँ से ये दूंगा कि अक्सर औकात या रिसेंट एक हमारे पीएम साहब के पास जब हमारे सऊदीया के जो शहजादा थे उनका विजिट था, तो हमारे पीएम का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था just to release the prisoners in Saudi Arabia, जो सऊदीया के अंदर हमारे prisoners हैं पाकिस्तानी। अब
अक्रॉस द ग्लोब अगर आप उनका नंबर लें तो वो 90,000 इस टाइम पे लोग हैं वो इन प्रिजन हैं ग्लोबली। अब अगर अगर हम उनकी बात करते हैं कि वो लोग ग्लोबली इन प्रिजन क्यों हैं, तो वो ना तो कोई उन्होंने कोई मर्डरर्स हैं, ना वो कोई चोर डाकू हैं, जस्ट उनको उनके वीजा टाइप्स की नहीं, मोस्टली की बात करूंगा। 90,000 अगर मैंने कहा है कि प्रिजन के अंदर है, जिसके अंदर से 70 to 75,000 वो लोग होंगे जिनको अपने वीजा की टाइप नहीं पता थी, और वो उनकी वॉयलेशन के वजह से प्रिजन के अंदर आ गए। उनको उनकी जो भी एजेंसीज थी उन्होंने उनको रोक दिया काम करने से या वहां पे रहने से, और उनको जेलों के अंदर डाल दिया। इसकी एक ऐसी मिसाल दे सकता हूँ कि लेट्स सपोज कोई भी पाकिस्तानी काम करने की गर्ज से बाहर गया, बाहर वो जब काम करता जा रहा है उसको ये नहीं पता कि उसका जो वर्क परमिट वीज़ा है वो कितनी देर का है, और जब वो टाइम उससे गुजर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो एजेंसीज आपको ले जाती हैं, और जब आप फिर जेल के अंदर होते हैं तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आप बाहर किसी को अप्रोच कर सकें, जिसकी वजह से बहुत सारा अरसा ही उनको जेलों में रहना पड़ता है। तो वीज़ा टाइप्स के ऊपर हम लोग यही बात कर रहे हैं कि वीज़ा टाइप के अंदर हम लोग अक्सर औकात ये भी सुनते हैं जी, दुबई के खास तौर पे, कि जो लोग दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च आउट करने के लिए जाते हैं तो विजिट वीज़ा के ऊपर जाते हैं, एंड दे कंसिडर दिस के विजिट वीज़ा पे गए हैं और वो वहाँ पे अगर उनको जॉब मिल जाती है तो दे स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर। तो विजिट वीज़ा के अंदर जनरली बस यही बताना होता है हम लोगों ने कि आप विजिट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर सकते हैं, लेकिन आप काम नहीं कर सकते। हाँ, इन अदर एस्पेक्ट आप विजिट वीजा के अंदर आप इंटरव्यू जरूर दे सकते हैं। स्टडी वीजा की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को जो बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हर मुल्क में कितने घंटे काम करने की इजाजत है, मिनिमम वेज कितनी है। तो जब आप बाहर के कंट्री के अंदर कभी भी चले जाते हैं तो आपको नहीं पता लगता कि बाहर जाके जब मसाइल हैं किस किस्म के आपको फेस करना पड़ सकते हैं। तो हमारा जो एमआरसी का मैंडेट है वो यही है कि हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी बताते हैं कि जिस वो कंट्री में भी माइग्रेट कर रहे हैं उनको उनके राइट्स का पता हो कि क्या क्या राइट्स हैं, कितने वर्किंग आवर्स उनके पास अवेलेबल है, और मिनिमम वेज है वो क्या है उनके पास। वर्क परमिट वीज़ा मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दे दी है, जो लोग काम करने के हवाले से जाते हैं। बिजनेस वीज़ा जो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं आउट ऑफ द कंट्री। इमिग्रेशन वीज़ा जो लोग इंडिविजुअली या फैमिली के साथ ही टोटली बाहर माइग्रेट करना चाहते हैं। और मेडिकल वीज़ा जो कि हम कह सकते हैं ज़्यादातर इसको अवेल हमारी पॉलिटिकल क्लास करती है, सियासतदान ही जनरल कर रहे होते हैं। इसके साथ ही जी मैं यहाँ पे ब्रेक लूँगा और फर्दर राना इमरान अरशद साहब जो कि मेरे कॉलीग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे स्लाइड्स को लेके चलें। तो राना इमरान, माइक इज़ योर्स। थैंक यू सो मच उमर। आपने बड़ा डिटेल के साथ जो है वो हमारे जो ऑडियंस हैं जो उनको बताया। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके जी। सबसे पहले जिस तरह अभी आप लोगों को उमर ने बताया कि वीज़ा टाइप्स के बारे में, कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ से जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। कुछ लोग जो है वो तालीम के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो काम करने की गर्ज से जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं। बट उनको ये पता नहीं होता कि वीज़ा की टाइप्स क्या हैं। उनके माइंडसेट के अंदर सिर्फ ये चीज़ बिठा दी जाती है या उनको बता दिया जाता है कि बस आपके पास वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा का जिस तरह के उमर ने आपको बताया कि वीज़ा का 2 लफ्ज़ी मतलब लिया जाए तो वीज़ा का मतलब है इजाज़तनामा। आपके पास जिस मुल्क का वीज़ा है, आपके पास इजाज़तनामा है कि आप उस मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। बट आपका पर्पज़ वहाँ पे जाने का जो आपकी वीज़ा टाइप है वो जो है वो करती है, वज़ा करती है कि आपने वहाँ पे जाके क्या करना है। क्योंकि ये बताने का मकसद इसलिए है कि हमारे अराउंड 90% लोग जो हैं वो बैरून मुल्क काम करने की गर्ज से जाते हैं।
और लेकिन चूंकि उनको पता नहीं होता और वो पता ना होने की वजह से जो है वो लोगों के हाथों एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और वो विजिट वीजा पे चले उनको भेज दिया जाता है या उनको स्टडी वीजा पे भेज दिया जाता है या उनको मेडिकल वीजा पे भेज दिया जाता है, मेडिकल ग्राउंड्स बना के, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के। तो जब वो वहां पे जाके काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर उनको या तो जेल में बंद कर दिया जाता है या डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो है उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन का वो शिकार हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें विजिट वीजा के ऊपर, उमर ने बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को बताया कि विजिट वीजा के ऊपर जाके आप घूम फिर तो सकते हैं, सैर तो कर सकते हैं, लेकिन जॉब ढूंढ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, बट काम कर नहीं सकते, जॉब कर नहीं सकते। उसके लिए आपको अपने वीजा का स्टेटस चेंज करवाना पड़ेगा, फिर आप जो है वो काम कर सकते हैं। अगर आप विजिट वीजा पे रहते हुए जॉब स्टार्ट कर देते हैं तो वो एक इलीगल इरेगुलर एक्टिविटी है। तो अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसको या तो जेल में बंद कर दिया जाएगा या वापस कर दिया जाएगा। अब सेकंड जो है जी स्टडी वीजा। अगर हम स्टडी वीजा की बात करें तो स्टडी वीजा के जो है वो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जी हमें कोई अच्छा सा मुल्क बताएं जहाँ पे हम जाके जो है ना स्टडी अब्रॉड जो है ना के लिए हमें कोई अच्छा सा मुल्क बताएं। तो हम लोग स्टूडेंट्स को यही बताते हैं कि अगर कोई भी बंदा है सबसे पहले तो उसे अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आइडेंटिफाई करना होगा कि उस बंदे ने जो है वो जो जिस भी एरिया के अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा है या डिग्री करने जाना चाह रहा है तो उसको पता हो कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बाद उसको पता हो कि उसके अंदर उसने कौन सा कोर्स करना है और कौन से मुल्क में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो उस बंदे को जो है वो ऑफर कर रही है वो कोर्स। मसला यहाँ पे ये होता है कि हमारे यहाँ पे अमूमन जो है वो लोग जो है ना वो रिलाई करते हैं कंसल्टेंट्स के ऊपर और वो चाहते हैं कि सब कुछ जो है ना वो खुद ही उनको बता दें। हालांकि रिसर्च करने से बहुत सारी चीजें हैं जो खुद से लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही वो रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने से उन्हें पता होगा कि कौन सा उनका जो मतलूबा कोर्स है वो कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है उस मुल्क में। तो फिर वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जब विजिट करेंगे तो वहां पे पूरी डिटेल जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगी कि उसमें जो है एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर्ड है और रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं फॉर एडमिशन। तो जब आप उनको फुलफिल करते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो आपको जो है वो एडमिशन जो है लेटर रिसीव होता है, ऑफर होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से और आपको जो है वो यूनिवर्सिटी की फीसिस वगैरह जो है वो पे करनी होती हैं और आपने जो है वो अपनी जो फी पेमेंट्स हैं और जो स्कॉलरशिप डिटेल्स हैं उसको जो है वो ऑर्गेनाइज करना होता है, मैनेज करना होता है। अब यहाँ पे दो किस्म के स्कॉलरशिप्स होते हैं जो बैरून मुल्क जाने के लिए जो ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दो। एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप्स आ रहे होते हैं। तो वो स्कॉलरशिप जो है वो आप हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट www.hec.gov.pk पे देख सकते हैं, वहां पे सर्च कर सकते हैं। दूसरा ये दो वेबसाइट्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, scholarshipportal.com और scholarshipfordev.com। तो इनके ऊपर भी जाके आप जो है वो सर्च कर सकते हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। सेकंड स्कॉलरशिप्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज की तरफ से ऑफर हो रहे होते हैं और वो वाले जो स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही जो है वो चेक किए जा सकते हैं। उसके बाद जी जब आपका एडमिशन अप्रूवल लेटर आ गया उसके बाद आपकी फीसेस पे होगी तो फिर आपका अगला जो स्टेप है वो है वीजा एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मैं ये वाज़ह करता चलूँ कि किसी भी मुल्क में किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया और उस मुल्क का वीजा क्राइटेरिया दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी बंदे का किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो उसको वीजा भी मिल जाएगा। तो वीजा क्राइटेरिया को जो है वो मीट करना और उसको फुलफिल करना जो है वो अलहदा से रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यूनिवर्सिटी एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो एक अलहदा से पूरा प्रोसेस है। उसके लिए फिर आपको जो है वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर जब आपका वीजा अप्लाई हो जाएगा, वीजा मिल जाएगा, उसके बाद आपने अपना ट्रैवल प्लान करना है और अकोमोडेशन जो है उसको प्लान आउट करना है कि आप वहां पे जाके रहेंगे कैसे, सारी चीजें आपने प्लान आउट करनी है। उसके बाद जाने से पहले आपने प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन जो है वो रिसीव करनी है। वो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से भी हासिल की जा सकती है, प्रोटेक्टरेट ऑफिस से भी हासिल की जा सकती है, जिसमें
जिस तरह उमर ने अभी आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया कि प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन में जो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ के वर्किंग लिविंग एनवायरनमेंट और जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। ये तो था जी के बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बस आप सब कुछ हमें करके दे दें और हमसे पैसे जितने मर्जी ले लें। हालांकि अगर जब वो इस तरह से कोई सी कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे होते हैं तो उनको बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में पता नहीं होता, और वो बहुत ज्यादा जो है वो पैसे का ज़िया कर रहे होते हैं। अगर कोई भी बंदा रिसर्च करता है, थोड़ी सी रिसर्च करेगा तो उसके साथ पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है। अब इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो स्कैम्स का और फ्रॉड फेक एजेंसीज के जो थ्रू जो है वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसमें कुछ स्कैम्स हैं जिनके बारे में जो है वो आमतौर पे देखा जाता है और सुनने में आता है। तो उसमें सबसे बड़ा जो है वो डन बेसिस का होता है कि कोई मुख्तलिफ जो है वो फ्रॉडलेंट एलिमेंट कह रहे होते हैं कि डन बेसिस के ऊपर जब आप वहाँ पे आपको ऑथराइजेशन ऑफ वर्क हो जाएगी, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा और वो इंश्योर करवाते हैं, उसके बाद आप हमें पैसे दें, तो वो वहाँ पे जाके फिर उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। और इस तरह का कोई सीन नहीं है, डन बेसिस वाला कोई सीन नहीं होता। जो भी होता है वो यूनिवर्सिटीज की फीसेस हैं, एम्बेसी की फीसेस हैं, वो आपको पहले ही पे करनी पड़ती हैं। उसके बाद जी बहुत सारे एजेंट हैं जो आपको फॉल्स होप दे देते हैं, मसला कोई नहीं है, आप बेशक मैट्रिक भी हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी परेशानियां सारी हम समेट लेते हैं। तो इसलिए जो फॉल्स होप देते हैं तो वो अक्सर जो है वो लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे होते हैं। तो उसके बाद वो लोगों को जो है वो क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, लोगों को जो है वो अंधेरे में रख रहे होते हैं, उनको जो है वो चंद इंफॉर्मेशन दे के उनको सब्ज बाग दिखा के जो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन कर देते हैं। तो इस तरह के लोगों से आपने बचना है। ये तो था जी स्कॉलरशिप के लिए। अब सेकंड बात आ जाते हैं ऐसे लोग जो बैरून मुल्क काम करने की गर्ज से जाना चाहते हैं। तो काम करने के जाने के लिए 4 तरीकाकार हैं जिनको फॉलो करते हुए कोई भी बंदा जो है वो बैरून मुल्क जा सकता है। सबसे पहले तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई भी बंदा जाके जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बेसिकली होती क्या है? ये मोस्टली जो हाईली स्किल्ड, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जिस तरह आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, वो मोस्टली कर रहे होते हैं कि वो ऑनलाइन कंपनीज के वेबसाइट्स के ऊपर जाके या ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के ऊपर जाके जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब्स के लिए, और जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और उनको जॉब ऑफर्स आ रही होती हैं और उनके बेसिस पे वो जो है वो बैरून मुल्क जा रहे होते हैं। लेकिन आजकल का जो कोविड सिनेरियो है इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है ऑनलाइन अप्लाई करते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिफिकेशंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जो है वो मुहतात रहने की ज़रूरत इसलिए है कि बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारे फेक एडवर्टाइजमेंट्स और फेक जॉब ऑफर्स जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, और लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। तो ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं उनको मीट कर रहे हैं वो लोग, और उनकी वेबसाइट्स जो हैं वो आपको ईमेल जो आ रही हैं वो एचआर के थ्रू ही आ रही हैं। थर्डली जो कंपनीज हैं वो आपको डायरेक्टली हायर कर रही हैं, और जो एक हायरिंग प्रोसेस है उसको जो है वो फॉलो कर रही हैं। तो उसके अलावा जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में दूसरा तरीकाकार ये होता है कि एक तो ऑनलाइन होता है, दूसरा तरीकाकार ये होता है कि किसी का कोई रिलेटिव या फ्रेंड वहां पे गया, वो ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट जो है वो वहां पे उसको जॉब ऑफर दिलवाता है और जॉब ऑफर देता लेके देता है किसी कंपनी से, और उसकी बेसिस पे वो वीजा लेता चला जाता है। और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में तीसरा तरीकाकार ये होता है कि कोई बंदा विजिट वीजा पे जाता है और विजिट वीजा पे जाके वहां पे जॉब सर्च करता है, इंटरव्यू देता है, और जॉब ऑफर होने की सूरत में जो है वो अपने वीजा का स्टेटस चेंज करवाता है और वहां पे जॉब करने लग जाता है। अब वीजा स्टेटस चेंज करवाने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि कुछ ममालिक हैं जो विद इन द कंट्री जो है वो स्टे करते हुए जो है वो वीजा का स्टेटस चेंज कर देते हैं। बट कुछ ममालिक हैं जो कहते हैं कि नहीं, आपको पहले एग्जिट करना पड़ेगा और फिर आप जो है वो दोबारा अपने वीजा के स्टेटस को चेंज करवाते हुए आप एंट्री लें, तो फिर आपका वीजा का स्टेटस चेंज होगा। तो ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री कि किस तरह से वो उनकी पॉलिसीज हैं। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे जो है वो करते हुए कोई भी जॉब सर्च करते हुए या अप्लाई करते हुए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि उसमें
आप लोगों को बहुत मुहतात रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन की जरूरत है। जो है वो उस पे ऊपर जो है वो अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीजें जो है वो आजकल स्कैम्स में बहुत ज्यादा आ रही हैं। अब जो दूसरा तरीकाकार है, जहां जहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बायलैटरल एग्रीमेंट हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, तो उन ममालिक को डील करता है गवर्नमेंट का एक इदारा है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। बुनियादी तौर पे जहां जहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मैन पावर सप्लाई के G2G कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको ज्यादातर डील करता है। जिस तरह साउथ कोरिया, अभी जापान के साथ हमारा हो गया है, कुवैत के साथ हमारा पैरामेडिकल स्टाफ का ऑन है, यूके के साथ पैरामेडिकल स्टाफ का ऑन है, इसी तरह GCC कंट्रीज मुख्तलिफ हैं। और जहाँ जहाँ पे बैरून मुल्क एम्बेसीज के अंदर जो है वो गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं उनको उनकी ज़रूरत होती है या कुछ स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो वो भी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू ही हायरिंग प्रोसेस किया जाता है। तो उसकी वेबसाइट www.oec.gov.pk, इस वेबसाइट को विजिट करके मजीद तफसीलात ले सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे अथेंटिक लिंक्स यूरोपियन कंट्रीज के और मुख्तलिफ कंट्रीज के मौजूद हैं जहां से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जी फोर्थ वन जो है, और सबसे ज्यादा लोगों को बैरून मुल्क ये लोग भेजते हैं और सबसे ज्यादा जो है वो लोग जो है इन जैसे लोगों से एक्सप्लॉइट भी होते हैं, वो है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स। अब एक इन जैसे लोगों में और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर में क्या फर्क होता है, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा वाज़ह करना चाहता हूं कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर होता क्या है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो है प्राइवेट फर्द या कंपनी है जो बैरून मुल्क एम्प्लॉयर्स और पाकिस्तानी वर्कर्स के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करती है। और ये जो प्राइवेट फर्द या कंपनी है, ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होती है और इसको बाकायदा एक लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसकी बेसिस के ऊपर ये बैरून मुल्क से जॉब डिमांड लेके आते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो लोगों को बैरून मुल्क भेजते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 4450 के करीब लोग हैं जो रजिस्टर्ड OEPs हैं, जिनके पास लाइसेंस है। लेकिन उससे बड़ा अलमिया ये है कि उस 4450 में से सिर्फ 2070 लोग हैं जो एक्टिव हैं, जो बैरून मुल्क बाहर भेजने के मजाज हैं। तो अब कैसे पता चले कि कोई भी बंदा जो है वो जो बैरून मुल्क लोगों को भिजवा रहा है वो एक्टिव है, वो जेन्युइन है या फेक है? तो उसके लिए ये वेबसाइट लिखी हुई है www.beoe.gov.pk, तो इसको विजिट करके भी किया जा सकता है। उसका तरीकाकार अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, या फिर आप माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से भी राब्ता करके कर सकते हैं। इसको अगर हम करें तो अगर हम www.beoe.gov.pk की वेबसाइट को खोलेंगे तो इस तरह से कुछ हमारे सामने जो है वो उसका फेस आएगा, इंटरफेस इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे ये एक टैब है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लिस्ट एंड कॉन्टैक्ट्स ऑफ OEPs, तो जब आप इस लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक मिनट दो, ये इस तरह से दो बॉक्सेस आ जाएंगे। अब इसमें जो है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2070 के करीब वैलिड लाइसेंसेज हैं, बाकी कुछ इनवैलिड हैं, एक्सपायर्ड हैं, कैंसल्ड हैं, या सरेंडर कर गए हैं, या सस्पेंड हो गए हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, सर्च बाय लाइसेंस नंबर, सर्च बाय लाइसेंस टाइटल, सर्च बाय प्रोप्राइटर नेम। अब लाइसेंस नंबर ढूंढना सबसे आसान काम इसलिए है कि ब्यूरो की तरफ से ये मैंडेटरी है कि कोई भी रजिस्टर्ड OEP जो है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपना लाइसेंस नंबर अपने हर डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो लिखे, इवन अपने जो फॉर्म्स हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट है, उन सब के ऊपर लिखे। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे जो है वो हम कहते हैं 2211 को सर्च करते हैं। तो जब हम 2211 को सर्च करते हैं तो वो कहते हैं कि लाइसेंस टाइटल अहमद जई ओवरसीज था, बट ये सरेंडर कर चुके हैं, ये अब मजीद जो है वो ऑथोराइज नहीं है कि ये लोगों को बैरून मुल्क भिजवा सकें, तो इसलिए इनके साथ अब काम नहीं किया जा सकता। अब बहुत सारे लोग हैं जो इनका नाम इस्तेमाल करते हुए या इनका जो है
वो लाइसेंस नंबर इस्तेमाल करते हुए वो जो है एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं जो कि फेक होती हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि उनको जो है वो करने की जरूरत है, वेरीफाई करने की जरूरत है। इसी तरह हम 0171 के को चेक करते हैं तो ये पाक बेस्ट रिक्रूटिंग एजेंसी है और कराची से रजिस्टर्ड थी, ये इसका एड्रेस था, बट ये भी सरेंडर कर चुके हैं 1974 में, ये सरेंडर कर चुके हैं, ये छोड़ चुके हैं, तो ये अब नहीं है। अब मैं आगे चल के आपके साथ एक ऐड भी शेयर करूंगा जो पाक बेस्ट रिक्रूटिंग एजेंसी के नाम से आई है, बट क्योंकि ये तो 74 से खत्म हो गए हैं तो वो ऐड फेक है। इसी तरह अगर हम 4321 की बात करें तो कहते हैं जी ये हाई इंटरप्राइजेस है और इनका स्टेटस वैलिड है, ये कराची से हैं और ये इनका एड्रेस है और ये इनके प्रोप्राइटर का नाम है, तो ये वैलिड है, ये एक्टिव हैं, तो इनके साथ काम किया जा सकता है। तो इनके पास इस वक्त 4 परमिशंस अवेलेबल हैं। तो ये चीजें जो है इस तरह से लोगों को वेरीफाई किया जा सकता है। इसी तरह जब ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं, जो वैलिड लोग हैं, जब वो जॉब्स लेके आते हैं, डिमांड उनके पास आती है, तो इस तरह नहीं होता कि वो जॉब्स लेके आए और वैसे ही बगैर किसी को बताए जो है वो लोगों को बैरून मुल्क भिजवा दें। तो उनको उसका भी एक तरीकाकार जो है वो ब्यूरो ने वजह कर दिया है कि वो जब वो जॉब्स लेके आएंगे तो वो ब्यूरो से का एक झेली इदारा है प्रोटेक्टरेट ऑफिस, वहां पे वो अपनी डिमांड को सबमिट करवाएंगे। वहां पे जब वो उनको परमिशन नंबर जारी करेंगे तो उस परमिशन नंबर की बेसिस के ऊपर जो है वो उनसे वहां पे जो है वो लोगों को बैरून मुल्क भेज सकते हैं। तो जब वो परमिशन नंबर जारी कर देते हैं तो फिर जो है वो उसको अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर भी। अगर कोई बंदा जॉब सर्च करना चाहता है बैरून मुल्क के हवाले से तो यहाँ पे जो प्राइवेट लोगों के थ्रू है तो वो यहाँ से सर्च की जा सकती है। फॉरेन जॉब्स का टैब है, इसके ऊपर इस वक्त 94,121 फॉरेन जॉब्स जो है वो अवेलेबल हैं। ये एक लेबर क्लास से लेके एक इंजीनियर तक, मैनेजरियल लेवल तक और हर जॉब इसके ऊपर अवेलेबल है। आप यहाँ से सर्च बाय जॉब टाइटल भी कर सकते हैं, सर्च बाय परमिशन नंबर भी कर सकते हैं, अगर कोई वेरिफिकेशन करनी है सर्च बाय कंट्री भी कर सकते हैं, अगर कंट्री वाइज आपने सर्च करनी है तो आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा कहता है मैकेनिकल इंजीनियर की कोई जॉब सर्च करना चाहता है, तो इस वक्त 116 मैकेनिकल इंजीनियर्स की जॉब्स जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो मुख्तलिफ लोगों के थ्रू जो है वो पड़ी हुई हैं। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने मैकेनिकल इंजीनियर्स की आ गई है। इसी तरह आप कोई भी जॉब टाइटल यहाँ पे लिखते हैं और उसकी जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होंगी तो वो सारी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आप इसकी मजीद तफसीलात देखना चाहेंगे तो इसका ये परमिशन नंबर जो ग्रीन पे है, इस पर जब कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो इसकी तमाम तफसीलात जो है वो सामने आ जाएंगी कि इसमें सैलरी कितनी है, जिस तरह ये है सैलरी कितनी है और अदर बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हैं और किस बंदे के पास है और उसका एड्रेस क्या है और उसका फोन नंबर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके सामने डिटेल आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ से जो है वो जॉब सर्च भी कर सकते हैं इसी वेबसाइट से। अगर किसी को ड्यू टू सम रीजंस अगर किसी बंदे से नहीं हो सकती तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से रब्ता कर सकता है, तो हम उनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेरीफाई भी कर देंगे। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ अखबारात में और सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग जो है वो मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे होते हैं और जिनमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हैं जो सही नहीं होती और बहुत सारी सही होती भी हैं, बट ज्यादातर जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो सही नहीं होती है, उनको वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। वेरिफिकेशन करने का तरीकाकार वही है कि आप जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखें सबसे पहले तो 2 चीजें उसके ऊपर देखें कि उसके ऊपर ओईपी का लाइसेंस नंबर और उसका परमिशन नंबर जरूर होना चाहिए। अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट जिसके ऊपर लाइसेंस ओईपी का लाइसेंस नंबर और परमिशन नंबर नहीं है तो वो सिरे से ही फेक है। लेकिन अगर किसी के ऊपर लिखा हुआ भी है तो उसको भी मजीद जो है वो वेरीफाई करने की जरूरत है। जिस तरह ये ब्लू वाली अगर हम एडवर्टाइजमेंट देखें तो जिस तरह मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि पाक बेस्ट रिक्रूटिंग एजेंसी 0171,
इनका लाइसेंस नंबर है कराची से, तो ये सरेंडर कर चुके हैं 74 में, और लेकिन ये इनकी एड जो है ये तकरीबन कोई 2 महीने पहले जो है वो अखबारात में और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की थी, तो ये फेक है। इसी तरह अगर न्यू शाहीन ट्रेवल्स की बात करें तो इसके ऊपर कोई लाइसेंस नंबर नहीं है, परमिशन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये भी परमिशन नंबर किसी और जॉब्स का है। लेकिन यहाँ से नाम से देखें तो न्यू शाहीन ट्रेवल्स, कोई भी ट्रैवल एजेंसी बैरून मुल्क काम करने के लिए किसी बंदे को ट्रैवल एजेंसी नहीं भेज सकती। वो उनकी टिकटिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन काम के लिए जो है वो भेज नहीं सकते। उसके लिए जो है वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर होना जरूरी है और लाइसेंस होना जरूरी है। तो ये दोनों फेक हैं। इस तरह की जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिलती होंगी डेली बेसिस के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैंने तरीकाकार आपको बता दिया कि जिस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं परमिशन नंबर के थ्रू या लाइसेंस नंबर के थ्रू। अगर खुद नहीं कर सकते तो नो इशू, आप माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से भी राब्ता करवा दे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वेरीफाई करके दे देंगे। इसी तरह जी जो बंदा ये कुछ 8 पॉइंट्स हैं, जो बंदा इनको मद्देनजर रखता है, फॉलो करता है, उसके साथ धोखाधड़ी फ्रॉड के किस जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सबसे पहले तो बंदे को पता होना चाहिए कि उसने जाना कहाँ पे है, वहाँ पे उसके रोल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और वहाँ पे लीगली जाने के लिए का तरीकाकार क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या वो उसको फुलफिल कर सकता है या नहीं। और वहां पे जिस बंदे से वो जो बंदा उसे भेज रहा है क्या वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से रजिस्टर्ड है या नहीं। उससे के बाद सबसे अहम बात जो हम अक्सर निगलेक्ट करते हैं, हमारे जो बैरून मुल्क लोग जा रहे होते हैं वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जुबानी बातों के ऊपर यकीन कर रहे होते हैं। कभी भी किसी भी बात जुबानी बात के ऊपर यकीन ना करें, बल्कि बैरून मुल्क जाने के हवाले से जितनी भी बातें हो रही हों तो उनको लिख के जरूर करें, सो दैट कि आपके पास एक प्रूफ हो कि ये बातें हुई हैं। और उससे काम का कॉन्ट्रैक्ट लाजमी लें। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जी, कंपनी कौन सी है, क्या काम करती है, आपसे क्या काम लेगी, किस पोजीशन के लिए आपको हायर कर रही है, सैलरी आपको क्या पे करेगी, वेजेस में अदर पर्क्स क्या देगी, और आपको ओवर टाइम का क्या सीन होगा, और वहां पे लिविंग कंडीशंस क्या होंगी, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी। ईच एंड एवरीथिंग आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखी होगी। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले हम हर बंदे को ये बात कहते हैं कि कोई भी बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो उसको पहले उसकी जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, उसके बाद सिग्नेचर करना चाहिए। बिकॉज कि वंस कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और उसका एम्प्लॉयर भी साइन कर देता है तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। उसकी बेसिस के ऊपर कोई भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय दोनों में से कोई भी कोर्ट जा सकता है। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर एम्प्लॉयर की तरफ से पहले सिग्नेचर ना हुए हों, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन हरगिज मत करें। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पहले एम्प्लॉयर की तरफ से साइन होने चाहिए, फिर आपकी तरफ से साइन होने चाहिए या एम्प्लॉय की तरफ से साइन होने चाहिए। उसके बाद जी जुबानी कलामी बातों के ऊपर यकीन ना करें। आपके जहन में जितने भी सवाल हैं हर सवाल को करें। जिस बंदे से आप वीजा ले रहे हैं अगर वो बिल्कुल जेन्युइन हुआ तो आपके हर सवाल का जवाब देगा। और सेकेंडली हर चीज की निटी गिटी में जाएं, उसकी वेरिफिकेशन करें। जॉब लेटर दे रहा है उसकी वेरिफिकेशन करें, कोई बंदा आपको जो है वो और जॉब ऑफर कर रहा है उसकी वेरिफिकेशन करें, एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसकी वेरिफिकेशन करें, हर चीज की वेरिफिकेशन करें, सो दैट को कल को किसी किस्म की कोई मुश्किल या परेशानी से का सामना ना करना पड़े। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखें और अपने घर पे एक फोटोकॉपीज छोड़ के जाएं। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी किसी को ना दें, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो आपसे ज्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत नहीं कर सकता। उसमें आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, आपका पासपोर्ट है, आपका आईडी कार्ड है, ये चीजें शामिल हैं। उसके बाद जी बैरून मुल्क कोई भी बंदा जा रहा है तो हम उसको कहते हैं कि आप वहां पे जन्नत नजीर नहीं है, काम का माहौल है, मुश्किलात परेशानियां आ सकती हैं। आप अपने आप को इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर करके जाएं और आपको पता हो कि वहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कौन से इदारे मौजूद हैं जो आपको सपोर्ट फ्राहम कर सकते हैं, आपके अपने कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट फ्राहम कर सकते हैं। तो मुश्किल और परेशानी की सूरत में आपके पास एक आपका पूरा सपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, तो सो दैट कि आप मुश्किल या परेशानी में उनको कॉल कर सकें। उसके बाद जी ये तो था जीसीसी कंट्रीज के लिए। अब आ जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज के लिए। अब जिस तरह जीसीसी कंट्रीज में ये जॉब ऑफर्स होती हैं थ्रू ओईपीज या डायरेक्टली, तो इसी तरह जो है वो
यूरोपियन कंट्रीज ऑफ जॉब ऑफर नहीं करते पाकिस्तानी सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों को। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का किसी भी यूरोपियन कंट्री के साथ कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है मैन पावर सप्लाई का, और सेकेंडली हमारे उनके स्किल सेट में थोड़ा सा फर्क है। हाँ, किसी बंदे का स्किल सेट मैच करता है तो वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वहां पे जॉब अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज दो तरीका कार हैं, या तो विजिट वीजा पे जाके वहां पे जॉब सर्च की जा सकती है, लेकिन वहां पे अगर कोई भी बंदा विजिट वीजा पे जाके जॉब सर्च करता है और उसको जॉब ऑफर नहीं होती तो मुद्दत म्याद जो उसके वीजा की मुद्दत म्याद है उसके अंदर अंदर उसको वापस आना होगा। अगर वहां पे वो ओवरस्टे करता है या एक दिन भी ओवरस्टे करता है तो वो वहां पे इरेगुलर तस्वर किया जाएगा। इसी तरह स्टडी वीजा है, स्टडी वीजा के ऊपर जाके भी को बंदा जो है वो जाके स्टडी कर सकता है और जो 20 आवर्स अलाउड टाइम है वही जॉब कर सकते हैं और वो भी मिनिमम वेजेस पे करते हैं। दूसरा तरीकाकार जी, पहला तरीकाकार आपको उमर ने बताया कि जो कानूनी तरीकाकार है जो कि महफूज है, वो जो है कानूनी है और जो बंदे को जो है वो तमाम राइट्स प्रोवाइड करता है वहां पे जो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन है वहां पे। अब दूसरा तरीकाकार है इलीगल एंड इर्रेगुलर। अब इलीगल और इरेगुलर में थोड़ा सा फर्क है। वो ये है कि एक तो इलीगल हम उसे कहते हैं कि जो बिल्कुल जिस तरह तस्वीर आपके सामने है कि बगैर पासपोर्ट, बगैर वीजा, बगैर किसी कानूनी तकाजे को पूरा किए हुए कोई भी बंदा किसी भी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करता है तो वो इलीगल है। अब दूसरा टर्म है इरेगुलर। अब इरेगुलर क्या होता है, कोई बंदा गया तो वो लीगल वे से था, मिसाल के तौर पे वो विजिट वीजा पे गया था, वो मेडिकल वीजा पे गया था, वो स्टडी वीजा पे गया वो लीगल वे से था, बट वहां पे जाके वो ओवरस्टे हो गया या वो काम करने का मजाज नहीं था वहां पे, तो वो वहां पे काम करते हुए पकड़ा गया तो वो इरेगुलर जो है वो उसको तस्वर किया जाएगा और उसको या तो जेल में बंद कर दिया जाएगा या वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इमरान, आप साथ हैं? हेलो। आदिया, मुझे सॉरी, आवाज नहीं मेरा आ रही। जितना ख्याल है शायद कोई कनेक्शन एरर इमरान। जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कोई इंटरनेट कनेक्शन एरर है उनका। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मैं स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ तो आगे उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली सॉरी जी, ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम इमरान, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। प्लीज ने आप ना आते तो मैं कंटिन्यू करने वाला था, तो प्लीज गो अहेड। हाँ, ओके जी। और उसके बाद जी एक तो एक्सटॉर्शन हो सकती है, वहां पे अरेस्ट हो सकता है बंदा, अगर कोई भी बंदा गैर कानूनी तौर पे जो है वो काम करते हुए वहां पे पकड़ा जाता है तो वो या तो वो अरेस्ट हो जाएगा या उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस वक्त भी जो बैरून मुल्क अराउंड द ग्लोब 90,000 के करीब जो पाकिस्तानी जो है वो प्रेजेंट हैं वहां पे, तो वो सारे बहुत बड़े क्रिमिनल्स नहीं हैं। उनमें से 70% लोग जो हैं वो ऐसे ही हैं कि जिनको पता नहीं था, वो लोगों की बातों में आके जो है वो वहां पे जाके इरेगुलरली जो है वो गए तो वहां पे रेगुलरली, बट वहां पे वो ओवरस्टे हो गए या काम करते हुए पकड़े गए और आज वो जेलों में बंद हैं। उसके बाद ये जो तरीकाकार है गैर कानूनी तरीकाकार, उसमें दुश्वार गुजार रास्तों में से गुजरना पड़ता है। डेली बेसिस के ऊपर हम स्टोरीज भी सुन रहे होते हैं, डेली बेसिस के ऊपर न्यूज़ के अंदर भी आ रहा होता है, लोग भी हमारे पास आ रहे होते हैं जिनकी स्टोरीज हम सुन के जो है वो जो है बहुत ज्यादा जो है वो शॉक्ड होते हैं कि किस तरह के दुश्वार गुजार रास्तों से लोगों को गुजार के लिए लेके जाया जाता है। लेकिन जब वो उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो उनको बता रहे होते हैं कि बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आसान रास्ता है, आपको बिल्कुल जो है वो आरामदेह सफर करवाया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता और वहां पे जो है
बहुत दुश्वार रास्तों से, और उनमें से 70% लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे वहां पे रास्ते में अपनी जान गंवा बैठते हैं। सिर्फ 5 to 10% लोग हैं जो वहां पे पहुंचते हैं। जो पहुंच जाते हैं, अगर कोई पहुंच भी गया तो वहां पे भी जाके अब 10-15 साल पहले वाले हालात नहीं है। हम लोगों को बताते हैं कि भाई अगर कोई बंदा पहुंच जाता है तो फिर भी उसको वहां पे जितने राइट्स हैं जो उस स्टेट की तरफ से हैं, जो मिले होते हैं, वो आप अवेल नहीं कर सकते। सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बेनिफिट्स हैं वो बंदा हासिल नहीं कर सकता, जिसमें मिसाल के तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशंस के नुमाइंदे हर मुल्क में मौजूद हैं टू सपोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज। उसके बाद कम्युनिटी वेलफेयर अताशीज इस वक्त मोर देन 20 कंट्रीज के अंदर जो है वो मौजूद हैं टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी वर्कर्स। और उसके बाद हाई कमीशंस हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं टू सपोर्ट द ओवरसीज पाकिस्तानीज। तो ये इनके जो एडवांटेजेस हैं, ये भी जो इलीगल बंदा है, जो इरेगुलर बंदा है, वो हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा जाना चाहता है तो वो कानूनी तरीकाकार से जाए, अदरवाइज वो ना जाए। अगर वो गैर कानूनी तरीके से पहुंच भी जाता है तो वहां पे भी उसको मुश्किलात और परेशानियों के अलावा जो है वो कुछ नहीं मिलने वाला, और वहां पे वो जो है वो मुश्किलात और परेशानियों में घिरा रहेगा, या उसके ऊपर हर टाइम तलवार लटकती रहेगी कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, और पकड़े जाने की सूरत में वो डिपोर्ट ना हो जाए। डिपोर्ट होने की सूरत में उसके और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर ट्रैवल बैन की पॉलिसी जो है या पास हो चुकी है। ट्रैवल बैन हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी डिपोर्टेशन के ऊपर, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके ऊपर। उसके बाद जी यहाँ पे हमने एक टर्म यूज की है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग। इसमें एक बहुत माइनर सा फर्क है। वो ये है कि जो ह्यूमन स्मगलिंग है वो विद द विल ऑफ, उसमें जो है वो मटेरियल बेनिफिट्स और फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें कुछ जो बंदा जा रहा होता है उसकी अपनी जो है वो विल जो है वो शामिल होती है, और वो अपनी मर्जी से जा रहा होता है, और इसमें अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो बॉर्डर इन्वॉल्व होता है, अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो लोगों को जो है वो पहुंचाया जाता है। तो ये जो स्मगलिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग है, ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है। और जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन है, इसमें सेम चीजें पाई जाती हैं, बट इसमें साथ तशद्दुद का अंसर भी शामिल होता है। इसमें पुरतशद्दुद जो है वो वाकयात, मिसाल के तौर पे जो है वो फोर्स्ड लेबर हो गई, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, स्लेवरी जो है वो सर्विसेज हैं, उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स है। तो इसके लिए ये इंटरनल भी हो सकती है ट्रैफिकिंग, और एक्सटर्नल भी हो सकती है। बॉर्डर ना भी इन्वॉल्व हो तो ये विद इन द पाकिस्तान और विद इन द कंट्री भी हो सकती है। और ट्रैफिकिंग के अंदर जो है वो ये क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल होता है, और स्मगलिंग जो है वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है। उसमें विल शामिल होती है, और ट्रैफिकिंग में किसी भी बंदे की अपनी जो है वो विल शामिल नहीं होती। तो उसके बाद जी कोविड-19 के सिनेरियो के अंदर जो है वो कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो हेल्प जो है वो करने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एक वेबसाइट जो है वो डेवलप की है, जिसके अंदर एयरलाइन के रिलेटेड और जो है जो ट्रैवल गाइडलाइंस हैं और मुख्तलिफ ममालिक की पॉलिसीज़ हैं, उनकी अपडेट्स जो है वो अपडेट होती हैं। तो वो आप विजिट कर सकते हैं www.covid.gov.pk। तो इसके ऊपर जाके विजिट किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। इसी तरह जी जो लोग रिटर्नीज हो गए हैं, रिटर्नीज हैं जो कोविड सिनेरियो के अंदर जो है बैरून मुल्क से वापस आ गए हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव है फैसिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन सेंटर्स जो है वो कायम किए गए हैं ओपीएफ हेड ऑफिस में। उसकी वेबसाइट www.opf.org.pk पे जाके तफसीलात चेक की जा सकती हैं। इसी तरह कामयाब जवान प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो स्टार्ट किया है फॉर रिटर्नीज, और इसकी वेबसाइट kamyabjawan.gov.pk पे जाके तफसीलात हासिल की जा सकती हैं, जिसमें वो बिजनेस लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा इनिशिएटिव है, ओईसी के साथ उन लोगों को जो है वो रजिस्टर किया जा रहा है, सो दैट के कमिंग जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें उनको इंटरटेन किया जा सके। इसके अलावा जी जितनी भी ये इंफॉर्मेशन है जो है वो, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, बट टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम अपने जो है वो इख्तिताम की तरफ जो है वो आते हैं। तो इसके अलावा कोई भी, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बंदा जो हमें हमारे ऑफिस आके विजिट करता है
तो हम सिर्फ उसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, बल्कि इसके अलावा हमारी हॉटलाइन सर्विस है 0304112123, और इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जिसमें फेसबुक पेज है, ट्विटर हैंडल है और हमारा लिंक्डइन अकाउंट है, और उसके एड्रेसेस भी आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहे हैं। तो कोई भी बंदा हमें किसी भी वाई से जो है वो मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM जो है वो हमें अप्रोच कर सकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं तो ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए है, बल्कि आपके जानने वालों में से, आपके हल्का अहबाब में से कोई भी लोग जिनको ज़रूरत है इंफॉर्मेशन गाइडेंस की, वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो आगे जी नेक्स्ट हमारा है वॉलंटियर ड्राइव। इसके बारे में मैं उमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उमर प्लीज आप हमारे जो ऑडियंस हैं उनको वॉलंटियर ड्राइव के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इमरान। स्लाइड को शेयर अपने एंड से रखिएगा, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको पता है मैंने अपने इनिशियल जो सेशन के अंदर इस चीज़ को बयान किया था कि हमारा जो एक मैंडेट है उसके अंदर अवेयरनेस रेजिंग सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि शायद हमारे रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन अगर हमें पता हो तो अगर हम किसी भी जगह के ऊपर बैठे हो तो वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ को मैक्सिमम अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम लोगों ने एक वॉलंटियर ड्राइव का आगाज़ किया है, स्क्रीन्स पे आप लोगों के सामने है, और चैट बॉक्स के अंदर भी मैं उसको शेयर कर देता हूँ। तो जो लोग एज अ वॉलंटियर हमारे साथ रजिस्टर होना चाहते हैं वो इस लिंक पे जाके अपने फॉर्म को फिलअप करें, एंड देन हम लोग उनको अपने साथ एज अ वॉलंटियर रजिस्टर करेंगे, जिसके अंदर फर्दर उनकी ट्रेनिंग्स भी आ जाती हैं, और मज़ीद हम किस तरह से मिल के चल सकते हैं ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। इमरान जिस तरीके से बता रहे थे इख्तिताम के अंदर, इमरान नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि शायद 1 घंटे के अंदर हम लोग ना कवर कर सकें। हम लोगों ने मैक्सिमम कोशिश की है कि एमआरसी की सर्विसेज को आपके सामने रख सकें। फर्दर आप कोई भी शख्स हम लोगों को अप्रोच कर सकता है। ये मेरी और इमरान की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। उसके अलावा आप लोग हमें थ्रू ईमेल, थ्रू वेबसाइट, थ्रू फेसबुक, सोशल मीडिया चैनल्स आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चंस आपसे या अक्रॉस पाकिस्तान कोई भी आपका जानने वाला है, आप उनको हमारा रेफरेंस दे सकते हैं। वो ये तमाम सर्विसेज जो कि शुरू में हमने आपके साथ एक्सप्लेन की थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकता है। तो मेरे एंड से इस टाइम के ऊपर सिर्फ इतना ही। इमरान अगर आप बात करना चाहें, एंड इसके बाद मैं सादिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एंडिंग रिमार्क्स अपने दे दें, प्लीज। Thank you so much, Umar Saab. It was a great learning experience, and I hope students have learned a lot from this session. And thank you so much for your time and your presentation. And I will say to students that we have another session at 2 p.m. That is related to Overseas Education Expo. Don't miss that session. Do attend that session too. And once again, thank you so much, Umar Saab and Rana Imran Rashid Saab, for your time and for your presentation. It was a थैंक wonderful यू वेरी session. मच, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।